Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna. So this was a small little invocation prayer. So I'd like to welcome Ankit Kaushal for our Sankalpa 2 session. So now immediately we'll proceed with our chanting the holy name of one round chanting japa together. So please get geared up with your fingers. Hopefully you remember the technique how to count 108 times. 108 बार कैसे गिनना है शायद आपको याद होगा. ठीक है? Yes, sir. So we'll go ahead and we'll proceed in that. And before we chant mantra, Hare Krishna mantra, we chant one prayer that we just chanted, Jai Sri Krishna Chaitanya. So I will recite that, and after that you can say, then we'll chant together Hare Krishna mantra. Okay? So please speak. Jai Sri Krishna Jai Sri Krishna Chaitanya Chaitanya Prabhu Nityananda Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Advaita Gadadhara Gadadhara Srivas Adi Srivas Adi Gaur Bhakta Vrinda. Gaur Bhakta Vrinda. Okay. Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna 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 Hare Hare Ram, Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Krishna, Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare. Okay, so welcome back from brief chanting session to today's Fear to Love. Okay, so hopefully everything is fine from other side. I really thank Indranil for organizing this wonderful session once again after 1 week. So taking out so much time, from his job as well as doing job, and he's actually practicing this Krishna consciousness early morning, calling you all. It's really very, very inspiring. Like not usually any other person nowadays in this Kali Yuga, very difficult to get people like this who is actually so much dedicated with great love without having any expectation to uplift others for their welfare. So really it's very great, commendable acts actually on the behalf of such a wonderful devotee of Lord Krishna, which is actually we are so fortunate to have in this age of Kali Yuga. So we'll proceed ahead. As I've already told what would be the breakup of today's session. So we had already two of them. We had a small little Mangalacharan, then we had chanting the holy name together. So soothing in this early morning hours, right? And after that we shall go ahead with ascending from fear to love. So very wonderful session. Full session is actually of 1.5 hours, but I will try to somehow get to you all those valiant points of today's session in just 1 hour. And there is small little video also, we can see it later on. And after that we'll have Mangalarti. So last time you actually had liked Mangalarti a lot, and it's really there's nothing to like about, but it's actually the such a auspicious, such a great ceremony that was actually there in Indian Vedic culture. But now slowly, instead of
having auspicious Aarti, Mangal Aarti, the culture has become ulta. Auspicious TV Aarti they do. Every day morning they get up and just simply just push on the button of TV and they will hear all those different bad news from different corners of the world. And they start their life with Amangal Aarti. So it's a very nice opportunity to attend Mangal Aarti even though through Zoom. So welcome back again. So I'm okay with Indranil, like if you want to have, like if you want to go like for somewhere, like if you have some other work or service, you can proceed. You can have the option. You can keep yourself there and you can go ahead, or you can leave off also from the meeting if you feel like. Otherwise, it's most welcome. You can be here. That will be so nice for Puranjan and Kit also. So everything is okay. Just I want to get little confirmation from Ankit, Puranjan. Indranil is there already. Everything is okay. Please write down in chat box, or please unmute yourself and please speak. Yes, everything is fine. Yes, everything is fine. Okay, that's good, Puranjan. Everything is fine. Okay, that's good. So ascending from fear to love. So there is two extreme, fear, and there is one extreme, love. Fear एक ऐसा चीज है जो सबों के साथ है. फियर एक ऐसा चीज है जो कि सभी लोगों के साथ है. आप बता सकते हो फियर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि फियरफुल नहीं है इस प्लैनेट में, on this planet? Is there anyone who is not fearful at all? Or anyone who is like not fearful, like is perfectly independent and like free to act and free to think and free to speak anything? What do you say? Are there any person? What do you say, Ankit and Puranjan? Is there anyone who is fearless, 100% fearless? You can keep yourself unmuted. No, correct. Of course, no. No one is fearless. No one is fearless. But there are some people who are fearless. But hardly people, they know about them. So who are they? So fear and love are the two different entities which actually cannot be together. एक साथ नहीं रह सकते. जैसे डीजल और पानी है ना. डीजल इज लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट, हाइड्रोकार्बन, और पानी H2O इज अनदर स्टफ. तो दोनों एक साथ कभी भी जुड़ता नहीं है, मतलब एक साथ मिक्स नहीं हो सकता. So wherever there is fear, there cannot be love, and wherever there is love, there cannot be fear. So before we go ahead with fear and love, we must define those two words, actually, fear and love, right? So what is that fear and love? So first let's go to fear. Fear means insecurity of our existence, fear because of future uncertainties. So this is the root cause of the fear. Means we don't know what's going to happen tomorrow. We don't know what is going to happen next moment. At first time, कल क्या होने वाला है, एक मोमेंट के बाद क्या होने वाला है, हमें पता नहीं. किसी को पता नहीं. Practically किसी को पता नहीं. They say that okay, we have researched so many things, but what is going to happen in future, we don't know. So there is insecurity. Because of that, there are so many reasons because of that, the fear. But ultimate reason of being fearful is ignorance, means अज्ञान का ना होना. Yeah, the real cause, the root cause of fearfulness is not having the real knowledge. Okay, and love is something about having selfless service, or the selfless service attitude towards someone. That is called love. So both things cannot
come together. Where and the fear and love is actually two things which never comes together. So we know in the world we have insecurity, right? Insecurity of कैसे मुझे कंफर्ट मिलेगा, है कि नहीं, कैसे मैं सबसे आगे रहूंगा, और उसके कारण क्या होता है कि देयर इज अ फियर लाइक टू फ्रेंड्स, दो एकदम जिगरी दोस्त हैं, two friends are like so close like anything. Suppose they appeared in medical examination seats are very less in pre-medical test, PMTs. Before they used to say PMTs, now they say NEET, right? They say NEET or something. So like suppose there are 50 seats and one friend has got rank 50 and another friend has got rank 51. So what would be the situation of both of them? They are very, very near and dear friend. What would be the situation? They have worked 2 years or 3 years just to appear in that NEET exam. And there is 50 seats. One friend has got 50 rank, is just about to get into, and another has got 51 rank. क्या होगा उस समय? बताइए क्या होगा usually? Yes. Please tell. Puranjay, can you speak out or just write down in the chat box what will happen in that situation between both of them? What you expect to be? What you expect? It's very confusing moment. Very confusing moment, right? One may be jealous. Oh, yeah, this may be truth. Or something else. Ankit, want to say something? Sir, Maybe sad one. sir, one will feel hatred towards other. Yeah, correct. Very nice. So even though one is very close, one will start feeling like किसी भी तरीके से इसका क्या हो, काउंसलिंग रुक जाए या फिर काउंसलिंग में कुछ गड़बड़ हो जाए या फिर कुछ हो जाए इसको कि काउंसलिंग तक नहीं पहुंच पाए तो मेरा नंबर लग जाए. So this is the hard reality of the world. Like the silly things, people they compete and they are always fearful because of somebody is going to get to their position or something. So this is actually condition. Like suppose usually it happens if you go to train, then you find that like local trains, you don't reserve your seat. You go there and you saw that okay, there are 1 or 2 seats left. So immediately, without seeing anyone, just simply what we do, rush to just capture the seat, right? And even when there is window seat, then forget about it. No, we just go and somehow that try to grab the window seat. So window seat. Everybody want to go for window seat. So hardly that feeling of service, feeling of sacrificing for others actually seen. And this is called what is called fear. This is called the source of fear, or this is called fear. Like suppose what is fear when two friends have got 50 and 51 ranks? What is the fear? Fear is whether I will get to the medical college or not. This is the fear. When all the people are rushing into the local train, what is the fear? Whether I will get the seat or not. This is the fear. And like this, in each and every step of our life, from the time early morning we get up, we constantly are tormented with this types of fear. Kya hoga? What will happen? But the root, the solution of this is actually what's called love. The solution of this is called love, and that is actually the real nature of soul. This is the real nature of soul, that is love. And love means what? Service. Not trying to grab someone's opportunity and the comfort, but the art of serving. Like suppose you go to hotel, right? You go to sometime hotel, and good hotels, there are ladies waiters.
Have you seen ladies waiters? They come and they smile upon you so nicely. So, hi, Ankit. So I really, what you like to have. So we have, these are the menus we have, and they smile like so nice. And after that, no, you have done everything, you have eaten everything up, and then they will give you very smilingly a very big list of, like goods, items you took, and all the prices, and 2000 rupiah plus chapat, and very smilingly, not smilingly, rather somehow, okay, 2000 rupees, okay, ठीक है, हंस हंस के बोल रही हो तो ठीक है दे देता हूँ. तो वेटर की हंसी एक है. And you are there at home, like suppose, like now you are at home, might be like parents are quite very much close with you, but when you are in college, and after college you go to your home, so the first, like one semester over, and after that you went to home, and the first day, then when you went to home, your mother is cooking your best food item, and seeing smiling, seeing you, and seeing serving you without asking for the money. So which one is better? Better smile or better love? Which one is better love? What do you say? Mother's love for the child, or the waiter's very very beautiful form, and see you smiling for you in the hotel? Which one is better? Please respond. Which one is better? Please respond quickly in the chat box. Mother's love, of course. Yeah. Some more responses. Puranjay, correct. Oh, Shivam, welcome. Shivam is back. So Shivam, if you are there, please. Yeah, mother's love. That's true. Why? Because there is service involved, and service, that's selfless service. There is no fear. वहां पे डर नहीं है. वहां पे डर नहीं. वहां पे क्या है? लव है. So it is told that the real love is found in this world in the topmost density, only with mother and small infant. माँ, और वो भी कौन सी माँ? Indian माँ. If you see Indian mother and Western mother, there is a gulf of difference. So Indian mother and her child, a small little baby, a selfless service. She do not expect anything. वो छोटा सा बच्चा गोद में है ना, कभी वो टट्टी कर देता है, कभी पेशाब कर देता है, तो सबको वो साफ करती है, सबको अच्छे से, मतलब वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करते कि कभी ये बोलती नहीं क्या है, कैसा बेवकूफ है बच्चा, क्योंकि there is a sense of service. Actually that is actually the most closest form of love, closest form of service attitude, which can be categorized into the category of love, which is found between mother and her baby, and specifically Indian mother. So this is called actually love. But love word is very famous, right? बहुत फेमस है. बॉलीवुड के जितने भी गाने हैं, उसमें तो लव के ऊपर ही सब कुछ होता है कि नहीं? बड़े बड़े अच्छे गाने निकालते हैं लोग. प्यार दीवाना होता है, अनजाना होता है, पता नहीं क्या क्या है, और सब कुछ किसके ऊपर है? लोग लव के ऊपर ही बनाते हैं. लेकिन अगर रियलिटी को देखा जाए, तो पहली बात तो वो मूवी बनाए हैं जो कि पूर्ण रूप से काल्पनिक तथ्यों के ऊपर आधारित है, और उसके बाद उनके अगर निजी लाइफ में भी देखा जाए, तो there is no love. Only there are, even though they get married, there are many film stars, they get married, and after that some years they get break up, and they go, and so many different complexities they actually come across. So what is that love? So that is actually very important to be known from the Vedic literatures. राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न. राम को तो सभी जानते हैं, स्पेसिफिकली भारतवर्ष में सभी को जानते हैं. जब भगवान रामचंद्र का राज्याभिषेक होने वाला था, तो सारी प्रजाएं
जितने भी उनकी माताएं थी, कौशल्या, सुमंत्रा, सब लोग बहुत खुश थे। लेकिन एक व्यक्ति उसमें दुखी था, उसका नाम था मंथरा। और उसने जाके कैकेयी को बोला कि तुम्हें अपने राजा से ये मांगना चाहिए कि भरत का राज्याभिषेक हो और रामचंद्र का क्या हो, वनवास हो, तुम ये मांगो। लेकिन कैकेयी के हृदय में राम के प्रति बहुत ही ज्यादा प्रेम था, बहुत प्रेम था। लेकिन उसकी कुबुद्धि के कारण, मंथरा की कुबुद्धि के कारण क्या हो, कैकेयी का दिमाग उड़ गया और वो गई, वो राजा दशरथ से ऐसे पूछी, वरदान प्राप्त की। और इसके कारण क्या हुआ कि उस समय एक बार जो वचन बोल दिया जाता था वो करना होता था। बोला जाता है रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो दशरथ को बोलना पड़ा कि आप जाइए, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था कैकेयी को कि तुम्हारे 2 वरदानों को मैं पूरा करूंगा एक दिन। तो जब वो निकले वन के लिए, तो कुछ ही दिनों के बाद भरत को पता चला, भरत उस समय ननिहाल में थे, और भरत को पता चला कि ऐसा हुआ है, पापा एकदम मरणासन स्थिति में है, मतलब दशरथ महाराज। और वहां पे आए और उन्होंने आके वो ऐसा स्थिति देखा कि ऐसा ऐसा हो गया। वो कभी सपनों में भी नहीं सोचे थे कि मेरे लिए एक ऐसा षड्यंत्र भगवान राम के विरुद्ध किया जाए। तो उन्होंने तुरंत सब कुछ छोड़ा और निकल गए, कहाँ के लिए, भगवान राम को वापस बुलाने के लिए। वापस बुलाने के लिए निकल गए। बोले कि जब तक मैं राम को वापस नहीं लाऊंगा, मैं अयोध्या में पैर नहीं रखूंगा। और अपनी माँ को, जो कि मंथरा के कुबुद्धि से वो भ्रमित हो गई थी, उनको इतना दुत्कारा हो कि तुम मेरी माँ कहलाने लायक नहीं हो, मेरे जैसे व्यक्ति भरत का। वो तुरंत निकल गए राम सीता लक्ष्मण की खोज में। और वहां पे जाकर वो मिले जंगल में, वो मिले चित्रकूट में। चित्रकूट में वहां पे मिलने के बाद भगवान राम को भरत महाराज बोलते हैं, भरत बोलते हैं कि हे राम, ये जीवन में भी कभी नहीं सोच सकता कि आपके जो चरण कमल हैं, इन सारे कंकड़ और न जाने कितने सारे खरपतवार से होकर गुजरे। मैं चाहता हूं कि आप कृपया अयोध्या लौट जाइए, कृपया आप अयोध्या लौट जाइए। आपके बिना अयोध्या पूरी सोनी की सोनी हो चुकी है। किसी के जीवन में, किसी के लाइफ में कुछ भी मतलब रस नहीं है, लाइफ नहीं है। तो ऐसा सुन के क्या हुआ कि पूर्ण रूप से राम पूरे द्रवित हो गए। बोले कि नहीं हे भरत, ये पिता का आज्ञा है, पिता का आज्ञा पालन कैसे नहीं कर सकता हूँ, तुमको ये समझना पड़ेगा। तुम जाओ और तुम राज्य करो। भरत बोला नहीं, आप आओ, आप राज्य कीजिए। फिर राम बोले तुम जाओ, तुम राज्य करो 14 साल, तुम वहां पे तुम मेरे प्रतिनिधि होकर राज्य करो। तो यहाँ पे दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कंपटीशन। तुम राज्य करो, तुम राज्य करो। ये क्या है, ऐसा आप लोग देखे हैं क्या, मटेरियल में ऐसा होता है क्या? जैसे हमने देखा था एग्जांपल, ट्रेन में जैसे घुसते हैं तो जैसे ही एक सीट रहता है, 10 लोग रहते हैं, तो सबसे पहले हम घुसने का और बैठने का कोशिश करते हैं कि अरे हम बैठ जाएं। लेकिन शायद ही कभी सोचते हैं कि किसी को दें। ऐसे यूजुअली कोई इसमें तो रिलेशन नहीं है वैसा हम लोग का उनके साथ। लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हैं वो क्या है, दिस इज कॉल्ड LOV, दिस कॉल्ड लव। Love means the attitude of selfless service toward the Supreme God. So that is actually shown here. At last, Ramachandra told that Bharat, this is your service and this is your love toward me, that you go to Ayodhya. आप अयोध्या जाइए और वहां पे मेरे प्रतिनिधि होके आप वहां पे राज्य कीजिए। तो भरत ने बोला कि ठीक है भ्राताश्री, आपके कहने पे मैं जाऊंगा, लेकिन मैं राजगद्दी पे कभी नहीं बैठूंगा। और आपकी जो चरण पादुका है ना, उसको राजगद्दी पे रख के मैं उसकी सेवा करूंगा। प्रत्येक दिन में राज्य में जितनी सारी चीजें हो रही हैं, उसको वहां पे जाके आपके चरण पादुका के सामने जाके वहां पे दुहाई दूंगा, वहां पे आपको रिपोर्ट करूंगा चरण पादुका को। और कभी भी मैं पलंग पे नहीं सोऊंगा 14 साल। और 14 साल होने के एक दिन भी अगर आप लेट हुए, एक दिन भी अगर लेट हुए, तो समझ जाइए कि भारत आपका नहीं रहेगा संसार में। और इस तरीके से दोनों रोए वहां पे, एक दूसरे को गले लगा के सिर्फ रोए। और उसके बाद बहुत ही भारी हृदय से भरत वहां से अन्य जितने भी अयोध्यावासी थे उनको लेके चले गए 14 साल तक वहां पे भगवान रामचंद्र का वेट करने के लिए बस, और उनके कहने पर राज्य करने के लिए। So this is called, what is called love. And
in this love, there cannot be any fear. So when this service attitude is there, then there cannot be any fear. And moreover, if you know the knowledge about the Supreme God and the relationship between Him and the living entities, then that brings a complete fearlessness, that brings. Okay. So now let's go to fear to love. As we have seen that everybody is fearful. सब लोग भयभीत हैं, किसी न किसी चीज का भय है. जैसे कुछ लोगों का भय होता है कि पता नहीं कॉलेज में कैसा होगा, कॉलेज में जाने के बाद भय होता है कि ठीक से पास करेंगे कि नहीं, पता नहीं कितना सीजीपी आएगा, उसके बाद पता नहीं इंटर्नशिप लगेगा कि नहीं, इंटर्नशिप लगेगा तो पीपीओ मिलेगा कि नहीं, उसके बाद पीपीओ मिलने के बाद ठीक है, जॉब के बाद फिर दूसरा चालू होता है. बहुत सारे लोगों को तो पता नहीं क्या हो रहा है, जॉब लगेगा कि नहीं, बहुत सारा भय रहता है. ये भय जो ऐसा चीज है वो हमेशा रहेगा, हमेशा रहता है, सभी लोगों को भय रहता है. तो उस भय की स्थिति में लोग क्या करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, जो कि थोड़ा मतलब कि शुद्ध हृदय के वाले होते हैं, वो भगवान के पास जाते हैं. कोई मतलब शक्तिशाली पुरुष के पास जाते हैं और इस तरीके से भय को मतलब शामित करते हैं, भय को शांत करते हैं. तो फियर ये है सबसे लो क्लास लेवल ऑफ सर्विस. आउट ऑफ फियर, डर के कारण सेवा, डर के कारण वर्शिप. सो सभी जीवों का जो धर्म है, वो क्या है, वो सर्विस ही है. जैसे हमने साथ ये डिस्कशन किया था, पिछली बार डिस्कशन किया था, चीनी का धर्म क्या है, व्हाट इज द धर्म ऑफ चीनी, शुगर. आप लोग लिखिए जल्दी से अगर आपको याद है, चीनी का क्या धर्म है. Quickly, if you are there, Ankit, Puranjay, Shivam, you can unmute also, you can speak out directly if you are feeling little problem to write down. Sweetness, correct, Shivam. Okay, and some more, all of you are okay with this, right? चीनी का जो धर्म है वो है स्वीटनेस, मीठा होना. नमक का क्या धर्म है, व्हाट इज द धर्म ऑफ सॉल्ट, व्हाट इज धर्म ऑफ सॉल्ट, व्हाट इज धर्म ऑफ सॉल्ट. यस, खारापन, यस, करेक्ट. सॉल्टीनेस, बिल्कुल सही. यस. तो पानी का क्या धर्म है, पानी का क्या धर्म है, पुरंजय, पानी का धर्म बताओ. शीतलता, करेक्ट. शीतलता, द सेंस ऑफ क्वेंचिंग द थर्स्ट, है ना, वो है पानी का धर्म, शीतलता. और तरलता, वो जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो बर्फ बन जाती है तो वो नहीं है, that is actually not the धर्म ऑफ वाटर. पानी मतलब तरल होनी चाहिए, पीने से प्यास को बुझानी चाहिए. तो उसी तरीके से सभी जीवों का एक धर्म है, सभी जीवों का एक ही धर्म है, उसको बोलते हैं सनातन धर्म. सनातन मतलब कि जो हमेशा से है, उसको कभी हटाया नहीं जा सकता. उसको अगर हटा लें तो उसकी पहचान ही नहीं रहेगी. वो क्या है, वो है सर्विस. सबों का धर्म है सर्विस. सभी लोग सर्विस कर रहे हैं, सभी लोग. कोई नहीं बोल सकता कि मैं सर्विस नहीं कर रहा हूँ. कोई नहीं बोल सकता कि मैं हूँ तीसमार खान, मैं हूँ लॉर्ड, हर सब मेरी सेवा करेंगे और मैं बैठे बैठे खाऊंगा. बस एक ही आदमी है जो कहता है, वो है नारायण. और सभी लोग क्या है, सर्वेंट है. सब लोग सर्वेंट है. कोई नाम बता दो, कोई व्यक्ति नाम बता दो जो कि सेवा नहीं करता है. सब लोग सेवा करते हैं, भले वो डायरेक्टली भगवान की सेवा करे या फिर इनडायरेक्टली करे. सभी लोग भगवान की सिस्टम को सेवा कर रहे हैं या फिर भगवान को डायरेक्टली सेवा कर रहे हैं. तो सेवा के क्रम में सबसे लोअर लेवल का जो सेवा होता है उसको बोलते हैं आउट ऑफ फियर. आउट ऑफ फियर में क्या है कि उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं होती. जैसे आउट ऑफ फियर अगर बोले तो बहुत सारे लोग धर्म इसलिए बोलते हैं, इसलिए करना पड़ता है उनको कि उनको डर दिखा जाता है कि अगर नहीं करोगे तो कहाँ जाना पड़ेगा, नरक में, नरक जाना पड़ेगा. इसलिए वो इस तरीके से बताते हैं, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, तो क्या होगा कि नरक जाना नहीं पड़ेगा. तो ये क्या है, ये जो करने की शैली बताते हैं
वो है कि आउट ऑफ फियर, ये डरा के करते हैं। एक्चुअली देयर इज हेल, देयर इज इट्स नॉट लाइक देयर इज नो हेल, देयर इज हेल, बट वन शुड नॉट एक्ट जस्ट फॉर अवॉइडिंग हेल, देयर इज समथिंग बियॉन्ड दैट। तो और बहुत सारे लोग हैं ना जो कि इस तरह के धर्म का पालन करते हैं, अगर ये नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा, ये वाला कर लो तो शनि ग्रह का ये छूट जाएगा, राहु का ये हो गया है तो वो हो गया है। तो इस तरीके से बहुत सारे कर्म किया कार्यकलाप करते हैं आउट ऑफ क्या, आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ फियर। तो मतलब सनातन धर्म में तरह तरह के देवी देवताओं का वर्णन है जिसकी पूजा आउट ऑफ फियर की जाती है। स्पेसिफिकली माता काली, माता दुर्गा, भगवान शिव की जो पूजा होती है आउट ऑफ फियर किया जाता है, डर के कारण लोग करते हैं। तो ये है आउट ऑफ फियर, द सर्विस आउट ऑफ फियर। बहुत सारे लोग भगवान किसी भी मतलब कि शक्तिशाली पुरुष के पास नहीं जाते, ऐसे भी नहीं आते, लेकिन डर हमेशा रहता है, डर वो हमेशा रहता है। भले ही वो देवी देवता के पास न जाए, लेकिन वो किसी बड़े पैसे वाले आदमी या फिर बहुत ही है ना विख्यात आदमी की पूजा करते हैं। जैसे अगर रशिया में देखा जाए, पहले जब यूएसएसआर था उस समय लोग लेनिन की पूजा करते थे। बोलते तो भगवान नहीं है, लेकिन लेनिन का फोटो बना के, लेनिन का पुतला बना के वो उनको बहुत ग्लोरीफाई करते थे, एक तरह का पूजा ही हुआ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है उसमें कि आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, और ओनली प्रॉब्लम होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम आएगा। वही हुआ यूएसएसआर का, यूएसएसआर टुकड़ों में बट गया और इतनी पॉवर्टी प्रत्येक कंट्री में फैल गई कि अंततोगत्वा लोगों को वो लोग मूर्ख नहीं बना सके कि भगवान नहीं है, बिना गॉडलेस सिविलाइजेशन जो वो चाहते थे वो उनका फिर से विफल हुआ। तो ये है आउट ऑफ फियर, विच इज द लाइक लोएस्ट टाइप ऑफ सर्विस, लोएस्ट टाइप ऑफ धर्म दैट इट कैन बी परफॉर्म आउट ऑफ फियर। आउट ऑफ फियर के ऊपर है आउट ऑफ डिजायर। आउट ऑफ फियर से अच्छा है क्या, आउट ऑफ डिजायर, इच्छा, इच्छा के कारण करते हैं, इच्छा के कारण करते हैं ना आप लोग। बहुत सारे लोग जो भी इनकी इच्छाएं होती है उसकी पूर्ति करने के लिए वो देवताओं के पास जाते हैं, या फिर भगवान से पूछते हैं कि मुझे ये दे दीजिएगा। स्पेसिफिकली स्टूडेंट लोग तो माता सरस्वती की पूजा करते हैं, शायद आप लोग भी किए होंगे। माता सरस्वती, पूरा साल तो पढ़ा नहीं, पूरा सेमेस्टर बोल रहा हूँ इस बार पास करा दो, इस बार पास करा दो, बस मेरा ये वाला एग्जाम निकाल दो, उसके बाद तो मैं अच्छे से पढ़ूंगा। बहुत मुश्किल हो रहा है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। तो वो सरस्वती माता को खूब खूब पूजा 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 चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं। कितने लोग किए हैं ऐसा? कितने लोग सरस्वती माता को एग्जाम पास करने के लिए पूजा किए? हरे कृष्णा। कोई है या कोई नहीं है? Oh, Shivam. Okay, nice. So yeah, so and like there are many people, like specifically the girls, they worship Bhagwan Shiv. They worship Bhagwan Shiv to get better husband, better cool husband. So every Monday they go and they put water on the like head of Lord Shiva, and they put bel patra, and to get a good husband. Or similarly, so many men, they worship Mother Durga to get a beautiful wife, of course. So this is called out of desire, and it works. ये काम करता है, ऐसा नहीं कि ये काम नहीं करता। और साउथ इंडिया में जाएंगे तो बड़े बड़े नारायण, विष्णु के, कृष्ण के डीटीज हैं, वहां पे लोग जाके क्या करते हैं, वहां पे जाके वो डीलिंग करते हैं भगवान के साथ। स्पेशली बालाजी एक विग्रह है, बालाजी के पास जाके बोलते हैं कि बालाजी आप तो बहुत पैसा है आपके पास, लक्ष्मीपति बालाजी हो आप, तो मैं जा रहा हूँ बिजनेस करने के लिए यूएस जा रहा हूँ, तो अगर 10 लाख हुआ तो 5 लाख आपका और 5 लाख मेरा, डील फाइनल, राइट? 5 लाख आपका, 5 लाख मेरा, तो डील फाइनल करके जाते हैं। और वहां पे जाने के बाद उनको पैसा मिलता है,
सपोज 10 लाख मिलना डील किया था, और फिर एक बार क्या हुआ, एक आदमी का 5 लाख ही हुआ, और उसके बाद बालाजी के पास आया, बोला कि बालाजी दिस इज नॉट गुड, यू ऑलरेडी kept your 5 lakhs with you. So what to do? I don't know what to do with that. Now I cannot give that. So फिर पता नहीं उसको, फिर वो जो बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगा, बीमारियां होने लगी, तो क्या हुआ कि फिर से उसको पता चला कि हाँ ये बालाजी कर रहा है शायद, तो फिर जाके वो कुछ डोनेशन देके आया। सो ये है आउट ऑफ क्या, आउट ऑफ डिजायर। बहुत सारे लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, हे मारुति नंदन जगुबद, क्या है सॉन्ग है, पता नहीं, मैं भूल रहा हूँ। तो वो सारे पीड़ाओं को हर लीजिए, सारे अभय प्रदान कीजिए, भूत पिशाच से रक्षा कीजिए। तो ये है क्या, आउट ऑफ डिजायर। और कुछ लोग जगदीश कृष्ण का भी पूजा करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, बहुत ही फेमस ये प्रेयर है, ओम जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और कुछ बोलते हैं, धन जन धन सब मेरे पास आवे, ऐसा करके है, मैं भूल रहा हूँ। तो ये है क्या, आउट ऑफ डिजायर। तो आउट ऑफ डिजायर में क्या होता है, जब सारी जो चीज मांगे हैं वो पूरी हो जाती है, तो फिर क्या करते हैं, तुम भैया उधर ही रहो, हम इधर रहते हैं, ठीक है, फिर हमारे साथ आपका कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि वो क्या है, एक बिजनेस है, इट्स लाइक बिजनेस। भगवान के पास जाके आप बोले कि भगवान मुझे ये दे दीजिए, भगवान आपको क्या क्या वो दे दिया। उसके बाद आप अगर भगवान से मिल गया तो उसके बाद उसका कोई मतलब नहीं है ना। इट्स लाइक ए प्रॉब्लम सॉल्विंग किट, प्रॉब्लम सॉल्विंग गॉड। गॉड इज लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट फॉर पर्सन। तो उसके होने के बाद उसका कोई मतलब नहीं है, तो उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। तो क्रिश्चियंस लोग स्पेसिफिकली वो प्रत्येक सैटरडे को जाएंगे, बोलेंगे कि ओ माय गॉड प्लीज गिव मी माय डेली ब्रेड। अरे डेली ब्रेड क्या, खाना बिना प्रार्थना करने सबको मिल रहा है। इतने सारे हाथी हैं, वो अफ्रीका के जंगलों में लाखों हाथी है। वो तो इस तरह के जाके चर्च में नहीं मांगते हैं कि भगवान मुझे पेट भरने के लिए दे दो। उनको पूरा खाना मिल रहा है, पूरा का पूरा खाना मिल रहा है, भरपेट खाना मिल रहा है। इतने सारे हाथी और इतनी सारी चींटियां, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड, सबको खाना मिल रहा है, सबको खाना मिल रहा है। तो क्या आदमी को खाना नहीं मिलेगा? तो लोग क्यों जाते हैं फिर मांगने के लिए? क्योंकि है क्या, अल्टीमेटली वो फियर है। डिजायर जहां पे है वो फियर भी वहां पे है। तो उसके कारण वो क्या करते हैं, आउट ऑफ डिजायर दे आस्क टू गॉड डिफरेंट थिंग्स टू एक्चुअली नो बी गॉड टू गेट इनटू देयर लाइफ। तो ये है क्या, इसको बोलते हैं आउट ऑफ डिजायर। तो एक श्लोक है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकंजलिम भस्वारी अंजलिम मारुति रक्षन्तकम। तो इस तरीके से हनुमान जी की कुछ लोग पूजा करते हैं कि जहां जहां पे रघुनाथ का कीर्तन होता है वहां पे हनुमान जी हमेशा रहते हैं, और वहां पे सारे भयों से वो मुक्ति देते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, मटेरियल प्रॉब्लम, मटेरियल जितने भी गेन्स लेने के बाद वो क्या, वो एक दिन वो निकल जाता है, हाथ से निकल जाता है। उसमें क्या होता है कि वो परफेक्ट, उसमें मतलब कि परमानेंसी नहीं है उस चीज का। आप मांगे वो मिला, और कुछ समय के बाद वो हाथ से निकलता भी है। ये होता है आउट ऑफ डिजायर में। और आउट ऑफ डिजायर के ऊपर है क्या, आउट ऑफ ड्यूटी। ये आउट ऑफ डिजायर से ऊपर क्या है, आउट ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य पूर्णता। कर्तव्य पूर्णता मतलब कि माने भगवान ने हमें इतना सारा कुछ दिया है, फ्री में हवा दिया है, फ्री में सूर्य की रोशनी दे दी है, क्या नहीं दिया है, सब कुछ तो उन्हें नहीं दिया है। ये बुद्धिमान लोग समझते हैं, मतलब जो बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा है ही नहीं कि बोलने के लिए कि हम वो हमारा अपना है। लाइक सपोज जन्म दिया मम्मी पापा ने, जो शरीर हमें मिला मम्मी से मिला, आत्मा जो आई वो पिता के शुक्र से आई, लेकिन अंततः जो आत्मा है वो भगवान का ही दिया हुआ है। उसके बाद हमें शरीर मिला, शरीर मिलने के बाद खाना पीना सब कुछ मौजूद था, है ना, सब कुछ दिया गया।
उस कुछ ऐसा नहीं करके आए कि हमने अपना पहला यहाँ पे बना के रखा था, उसके बाद खाने का पूरा सिस्टम बना के रखा था, नहीं सब कुछ। उसके बाद हम हमारी स्कूल में भर्ती हुई तो वहां पे पढ़ाने वाला कोई था, पैसे देने वाला कोई था, सब कुछ पहले से रखा हुआ है, जिसमें हम लोग खुद क्या करें, जाके यूटिलाइज कर रहे हैं। हवा फ्री में मिल रहा है, अगर हवा बंद कर दिया जाए तो क्या होगा, कोई रह पाएगा? कोई नहीं जी पाएगा। हवा फ्री में मिल रहा है, पानी फ्री में मिल रहा है, प्रकाश फ्री में मिल रहा है। भारतवर्ष में ऐसा समय था जब खाना भी फ्री में ही मिलता था, खाना का कोई कमी नहीं था, कोई कमी नहीं, घी का कमी नहीं था, ग्रेन्स की कमी नहीं थी, अनलिमिटेड था, कोई खाने के लिए कोई चिंता ही नहीं करता था। लेकिन कलयुग के कॉमर्शलाइजेशन के कारण क्या है कि अब खाने के लिए भी गाले पड़ रहे हैं। धीरे धीरे आप बहुत सारे देशों में देखेंगे लोग पानी भी खरीदते हैं, भारत में भी पानी खरीदते हैं, शुद्ध पानी को अब उसको मार्केटाइज करके बेचा जा रहा है, तो लोग पानी खरीदने लगे। जापान की बात है, जापान में लोग हवा भी खरीदते हैं, उनके पास प्योर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो मिक्सचर है वो दिया जाता है, जिससे कि वो शुद्ध हवा कुछ देर तक ले, क्योंकि उतना पॉल्यूट कर चुके हैं हम लोग एटमॉस्फेयर को उधर। तो अगर देखा जाए बेसिकली तो सब कुछ ऑटोमेटिकली अवेलेबल है जीवों के लिए, सब कुछ अवेलेबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हमने बनाया है, सब कुछ अवेलेबल है। आप सोचो, आप डिजायर करो, आप इच्छा करो, सारी चीजें पूरी हो रही है, किसी न किसी रूप में पूरी हो रही है। आपने डिजायर किया कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, और बस आपने चेष्टा की, उसके बाद आप कॉलेज में चले गए। ये इच्छा शक्ति आपकी पूर्ण करने वाला कोई व्यक्ति है जो कि हमें दिख नहीं रहा है। वही व्यक्ति है जो कि हवा दे रहा है, वही व्यक्ति जो कि पानी फ्री में दे रहा है, वही व्यक्ति जो खाना दे रहा है, वही व्यक्ति जो शरीर दे रहा है, वही व्यक्ति जो सूर्य की रोशनी दे रहा है, और वही व्यक्ति जो कि पूरे प्राण को हमारे अंदर में संचारित किए हुए हैं। लेकिन उस वो व्यक्ति ऐसा है लेकिन दिखता नहीं, वो दिखता ही नहीं, दिखता नहीं। उसके कारण क्या होता है कि हमारे हृदय में कभी भी कृतज्ञता नहीं जन्मती है, कृतज्ञता नहीं, बिल्कुल कृतज्ञता नहीं, कुछ दिखता ही नहीं है, सब कुछ ग्रांटेड ले लेते हैं कि सब कुछ है। लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो जानते हैं कि नहीं, दिस इज एक्चुअली गिवन बाय सुप्रीम गॉड एंड दे नो द नेम कृष्णा ऑफ कोर्स। वो जानते हैं कि सब कुछ उनके द्वारा दिया हुआ है, तो हमारी थोड़ी सी ये बनती है, क्या बोलते हैं उसको, है ना, हमारी थोड़ी सी हमारा भी कुछ बनता है कि हम भी भगवान को प्रेम पूर्वक कुछ दें। ऐसे तो उनको कुछ नहीं दिया जा सकता है, सब कुछ उन्हीं का है, लेकिन कुछ देना मतलब कि इतना कुछ मिला तो कुछ ठीक है, उनके प्रति भी मेरा कुछ बनता है ना देने के लिए, तो कुछ देते हैं। तो ये आउट ऑफ ड्यूटी है, ये आउट ऑफ ड्यूटी है। लेकिन इसमें रिलेशनशिप उतना इंटीमेट नहीं, उतना मतलब ये नहीं है, मतलब गहरा नहीं है। लेकिन इससे भी ऊपर, इससे ऊपर एक रिलेशनशिप है, उसको बोलते हैं आउट ऑफ कोई बोल सकता है? शिवम ने लिखा है दार भी डिजायर से उत्तम है क्या? दार मतलब क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, हम इसको डिस्कशन करेंगे लास्ट में। तो जो ड्यूटी है, ड्यूटी से ऊपर है सबसे टॉप क्लास, वो है लव, वो है प्रेम। वो क्या है? वो है प्रेम। मतलब कि प्रेम मतलब कि विदाउट हैविंग एनी मोटिव, मतलब कि अगर ये करूंगा तो वो मिलेगा। यूजुअली लोग कार्य करते हैं, सेवाएं करते हैं कुछ रिटर्न में पाने के लिए। जैसे कुछ भी देख लो, कुछ भी देख लो, कुछ ना कुछ मोटिव रहता है कि अरे इसको पैसा दे देता हूँ, बाद में मुझे हेल्प करेगा, पैसा देगा, है ना, इसको मैं ये देता हूँ, ये वाली हेल्प कर देता हूँ, ये वाला सम इसका मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर मुझे एग्जाम में देखने देगा। तो अंदर अंदर में कुछ ना कुछ मोटिव रहता है। 100%, 99.9% टाइम ऐसा होता है। लेकिन लव में क्या होता है? कोई मोटिव नहीं होता। लव में कोई मोटिव नहीं होता। आप मुझे जूता मारो, आप मुझे पीटो, कुछ भी करो, मैं आपका बेस्ट वेल विशर हूं। ये है लव। दिस इज कॉल्ड LOVE, लव। और उसके बाद बचा हुआ उस इन सारे 3-4 चीजों में आता है, 3 चीजों में, फियर, डिजायर एंड ड्यूटी। लेकिन लव जो है एक ऐसा चीज है जो कि वो होता है किसके साथ? जीव के साथ, भगवान का लव। क्योंकि भगवान हमेशा ऑलरेडी लव में है सभी जीवों के साथ।
क्योंकि सब कुछ वो प्रोवाइड कर रहा है। भले ही वो भूल चुका है भगवान को, लेकिन जितने भी जीव हैं सबों को देखभाल करता है भगवान, बिना बताए हुए कि वो कर रहा है, बिना बताए हुए कर रहा है। लेकिन स्थिति जीवों की क्या है, लिविंग एंटिटीज की स्थिति क्या है, हमारी स्थिति क्या है कि हम लोग भूल चुके हैं, हम लोग एड्रेस पता नहीं, उसका नाम पता नहीं, उसका फॉर्म पता नहीं है, और ये सब ऐसी ऑटोमेटिकली सब हो रहा है। और कुछ लोग थ्योरी दे देते हैं कि ये आउट ऑफ ए सडन बाय चांस ये एटमॉस्फेयर बना जिसमें हम लोग रह सकते थे, है ना, आउट ऑफ चांस ये यूनिवर्स बना था और उसमें अर्थ बना और एटमॉस्फेयर बना है, पता नहीं कौन कौन सा स्फीयर बना, और बाय चांस हम लोग यहाँ पे हैं। और अल्टीमेटली बहुत लोग तो बोलते हैं केमिकल हैं, तो इसका तो खंडन हम लोग पहले ही कर चुके हैं डार्विन थ्योरी का। पूरा का पूरा मतलब बेसलेस थ्योरी है, थ्योरी मतलब कि which is actually not fact. So actually this is many times people they understand this is called ignorance. तो जो लव है वो उधर से ऑलरेडी है, मतलब कि सुप्रीम गॉड की तरफ से जीवों के लिए ऑलरेडी लव है, लेकिन जीव जितने भी हैं वो उनका एड्रेस और उनका जो रेसिप्रोकेशन है उसको नहीं देख पा रहे। और वही प्रॉब्लम है फियर का, वही प्रॉब्लम है डर का, वही प्रॉब्लम है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का, वही प्रॉब्लम है सारी प्रॉब्लम का संसार में, कि जिससे वो सब कुछ लेते हैं उनको थोड़ा भी कुछ नहीं देते हैं, उनको भी थोड़ा भी प्रेम नहीं देते हैं। जैसा हमने देखा था पिछली क्लास में, जिस घर में रहते हैं आपके पापा आपको सब कुछ देते हैं, खाना पीना सब कुछ देते हैं, लेकिन अब उनके प्रति थोड़ा सा भी आप प्रेम नहीं दिखाते हो, उनसे बात नहीं करते हो, या फिर अनग्रेटफुलनेस दिखाते हो, तो क्या पापा खुश रह पाएगा उस घर में और बेटे खुश रह पाएंगे उस घर में? बताइए, क्या पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। आपने पहले ही बोल चुका है कि नहीं है पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जहां पे ग्रेटफुलनेस होती है ना वहां पे होता है मजा, जहां पे वो कृतज्ञता होती है ना वहां पे होता है रियल हैप्पीनेस, वहां पे पलता है प्यार, वहां पे जो रियल जो प्रेम है ना वो वहां पे फलता है। कहां पे? जहां पे वो ग्रेटफुलनेस होती है। तो ग्रेटफुलनेस जस्ट नीचे है, ड्यूटी आउट ऑफ ड्यूटी जो करते हैं लोग वो ग्रेटफुलनेस से करते हैं, लेकिन ग्रेटफुलनेस से ऊपर है लव। लव मतलब आपने जैसे बचपन में हम लोग थे, बचपन में छोटे छोटे बच्चे थे, है ना, तो सपोज एक घर में एक पिताजी मार्केट गया, मार्केट से 10 चॉकलेट लेके आया, आपने 2 बेटों को दिया 5-5 चॉकलेट, है ना। छोटा बेटा क्या किया, वो लेके गया चॉकलेट और सारा 5 चॉकलेट खा लिया आराम से। और सपोज उसका बड़ा बेटा उनका क्या था, वो 5 चॉकलेट लिया और उसी चॉकलेट में से आया, फिर बोलता है पापा ये चॉकलेट आप लाए हो ना, बहुत मीठा है, आप भी लो ना मेरे से, है ना, आप भी इसको खाओ ना। तो बताओ वो दोनों बेटे ही हुए उसके, लेकिन एक वो खुद को खा गया, एक दूसरा व्यक्ति उसी उन्हीं के चॉकलेट को, पापा का ही चॉकलेट उसको दे रहा है कि पापा ये खाओ। तो पापा क्या बोलेंगे, खाओ बेटे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चॉकलेट तो मैं बहुत खाया हूँ, अपने बचपन में बहुत खाया हूँ चॉकलेट, आप खाओ। तो कौन ज्यादा खुश और कौन ज्यादा हैप्पी रहेगा बताइए? तो छोटा बेटा हैप्पी रहेगा या बड़ा बेटा हैप्पी रहेगा? who will be more happier? Please speak out in the comment box. if छोटा बेटा खुश रहेगा जो कि सारे चॉकलेट खुद खा लिया तो लिखिए छोटा, और बड़ा अगर बेटा उसको खुश रहेगा तो लिखिए बड़ा। प्लीज keep quick, we have little time, we'll go ahead. I'm waiting for the response. Elder, correct? And Ankit, Shivam, the one who shares chocolate. correct. So thank you so much, Ankit, Shubham, Puranjay. Yeah, because अरे ऐसा नहीं है कि पापा को चॉकलेट की कमी है ना, चॉकलेट उसी के द्वारा दिया हुआ, लेकिन उसी के चॉकलेट को उसको देने से क्या होगा, पापा बहुत खुश होगा, ये मेरा कितना अच्छा बेटा है ना। उसी तरीके से सुप्रीम गॉड इज गिविंग अस एवरीथिंग by giving out something, his own things, by offering him, what happens? He becomes happy, and he becomes happy in return. We also become happy. So
this is actually secret of happiness and secret of love, secret of love. लेकिन हमारी क्योंकि इंटेलिजेंस उतने शार्प नहीं होती, हम लोग मांगना चाहिए क्या मांगते हैं कुछ दूसरा चीज. लाइक सपोज एक राजा था और राजा का जन्मदिन में बोला कि आज के राज दरबार में मैं सबको ऐलान करता हूं कि जो कोई भी व्यक्ति जो कुछ ही मांगेगा मैं उसको देने के लिए तैयार हूं. तो एक व्यक्ति गया, बोला कि मुझे 5 करोड़ रुपया चाहिए, 5 करोड़ रुपया दे दीजिए. बोला कि ठीक है, दे मिल जाएगा. एक व्यक्ति आया, बोला कि राजा जी आपका जो ये जो बूट है ना, आपका जो ये ना आपने जो गाउन पहना है ना, उसमें जो बटन लगा हुआ है वो सोने का, वो सोना मुझे चाहिए. वाह, सोना चाहिए, ठीक है मिल जाएगा. वो सारे लोग बहुत कुछ लिए, लेकिन एक वहां पे व्यक्ति था बहुत इंटेलिजेंट था. वो बोला कि राजा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक दिन आप मेरे घर पे आओ, एक दिन मैं आपको मेहमान बनाना चाहता हूँ, बस एक दिन के लिए. तो ठीक है, आपके घर मेहमान बनूंगा मैं. दिन ही फिक्स कर लिया. तो क्या हुआ, जितने सारे लोग जो जो चीज मांगे थे सब कुछ तो मिल गया, लेकिन एक दिन के मेहमान बनने के लिए क्योंकि राजा उसके घर पे जा रहा है, क्या करना पड़ा, राजा को फर्स्ट क्लास रोड बनाना पड़ा उसके घर तक के लिए. उसके घर पे क्योंकि राजा रहने वाले हैं, घर उतना अच्छा दिखने जाता, दूसरा राजमहल बनाना पड़ा उसके घर को. उसके बाद जहां पे रहेंगे उस जगह को ठीक से, जहां पे कमरे में रहेंगे उस कमरे को सजाया गया अच्छे से, उसी के घर को, क्योंकि राजा वहां पे आने वाले हैं और वहां पे वो मेजबानी करेगा. तो वहां पे मेजबानी करने के लिए उसने सारी अपनी तरफ से सारी व्यवस्थाएं की. तो इस तरीके से वहां पे मेजबानी किया, और उसके कारण क्या हुआ कि उसके बीच और राजा के बीच का जो संबंध था बहुत ही गहरा तो हो ही गया. हाँ, राजा बोला कि आप मेरे मिनिस्टर के रूप में आ सकते हो, और उसके साथ साथ उसका भी घर पूरा क्या हो गया, पूर्ण रूप से बदल गया, है ना, राजा की तरह हो गया. तो इसको कहते हैं इंटेलिजेंट. बुद्धिमान व्यक्ति वो क्या करता है, वो चाहता है कि कैसे भगवान के साथ प्रेम का संबंध बनाया जाए, क्योंकि वो सब कुछ दे रहा है, सब कुछ वही दे रहा है, लेकिन बताता नहीं है. ऐसा प्रेम है. प्रेम उसी को कहते हैं जिसमें आपके लिए कोई करे लेकिन अपना क्रेडिट नहीं ले, या फिर आपको बताए नहीं कि मैं आपके लिए किया, बता भी आपके लिए किया तो मतलब कुछ है ही नहीं. तो सुप्रीम गॉड इज समवन ही इज एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन, एवरी लिविंग एंटिटी. तो इस तरह इसको कहते हैं आउट ऑफ लव, इसको कहते हैं आउट ऑफ लव. लॉर्ड रामचंद्र हनुमान का जो प्रेम था वो है आउट ऑफ ग्रेट लव. एक बार जब अयोध्या में हनुमान और रामचंद्र साथ में थे, जब वो आए थे जंगलों से, सारे जंगल का अपना दुख काट के, तो लिस्ट बनाया गया था कि कौन कौन से लोग कौन कौन सी सेवाएं करेंगे राम दरबार में. तो उस लिस्ट में हनुमान का नाम ही नहीं. तो हनुमान देखा कि मेरा तो नाम ही नहीं भाई इसमें. तो गया भगवान रामचंद्र के पास, बोला कि दिस इज नॉट गुड, ये बिल्कुल गलत किया गया मेरे साथ, मेरा नाम ही नहीं इसमें सेवा में. तो कंप्लेन हो गया. रामचंद्र ने बोला कि ऐसा क्यों हुआ है, हनुमान जी को कुछ सेवा नहीं दिया है क्यों. सभी मतलब बोले कि एक्चुअली हनुमान बहुत सेवा की है ना, वो जंगलों में इतनी सारी लड़ाइयां लड़ी, उसके बाद ना जाने क्या क्या सबसे बड़ी बड़ी सेवा तो हनुमान ने किया. तो हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा उनको रेस्ट दे देते हैं. तो रेस्ट दे देते हैं, इसलिए हम लोग ने सोचा कि उनको अभी सेवा करने की जरूरत नहीं है. तो हनुमान ने बोला कि ठीक है ऐसा है, ठीक है, एक सेवा है जो अभी भी नहीं लगा है, वो मैं करूंगा. भगवान आपकी जमाई होती है, जमाई मतलब यानिंग. कई बार लोग थक जाते हैं तो यानिंग करते हैं, तो उस समय मैं चुटकी बजाऊंगा आपके लिए ऐसे करके. तो ये वाली सेवा कोई नहीं दिया, और इस तरीके से मैं हमेशा आपकी सेवा में करूंगा. तो ये है आउट ऑफ लव. एंड ये जो लव है उसमें कभी भी क्या नहीं है, वो फियर नहीं है, वो डर नहीं है. तो जहां पे वो लव होता है वहां पे कभी भी फियर नहीं होता. और लव किसके साथ, जो कि कंट्रोलर है एवरी एटम का, जो कि कंट्रोलर है एवरी सेकेंड का. ही इज एक्चुअली इन कंट्रोल ऑफ ऑल स्पेस एंड ऑल द टाइम. ही इज एक्चुअली द सुप्रीम कंट्रोलर, एंड whoever actually know this and have the loving reciprocation with him,
is a perfect fearless person. He knows that everything is perfect, going to happen with me, and is going with me perfect. If they actually in this reciprocation with great love with the Supreme God. So that is actually the way of proceeding from fear to love. First is called fear. We saw today that how everyone is actually supposed to serve and supposed to not serve. They are actually serving. Whether directly they are serving to Supreme God or they are indirectly serving to the God's system. God's system, but because they are not knowing that God is there and there is a loving relationship, they are working under the system of God, which is like jail-like system. Like some person is in a jail and some person in the state. Jail is also under the government and state is also under government only. लेकिन जेल वाले लोगों को बहुत दुख होता है और स्टेट में रहने वाले लोग बिंदास जीते हैं. दोनों गवर्नमेंट के अंदर. क्यों? क्योंकि जेल वाले लोग होते हैं आउटलॉस. उनको गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं. गवर्नमेंट का पूरा हमेशा वो है ना, वो हमेशा मतलब उसके खिलाफ चलते हैं, बहुत सारे क्राइम करते हैं. उसके लिए उनको जेल में भुगतना पड़ता है. लेकिन दोनों गवर्नमेंट के अंदर ही है. उसी तरीके से भगवान के साथ जो डायरेक्टली कनेक्शन करते हैं, दे आर लाइक लिविंग इन द फ्री स्टेट, लिविंग इन द स्पिरिचुअल किंगडम. लेकिन जो बदमाश होते हैं उनको रखा जाता है, ठीक है तो जाएगा कहाँ, तो सिस्टम पूरा प्लैनेट ही तो पूरा संसार ही तो उन्हीं के अंदर है, जाएगा कहाँ तो सिस्टम मेरा. लेकिन सिस्टम बहुत दुख देता है, बहुत प्रॉब्लम देता है. तो ये हुआ क्या, ये है धर्म सभी जीवों का कि वो सर्व करे. लेकिन परोधर्म, द टॉपमोस्ट रिलीजन जो है, टॉपमोस्ट धर्म जो है वो है आउट ऑफ लव. लेकिन आउट ऑफ लव के नीचे नीचे भी कुछ कुछ लेवल्स हैं, वो हमने देखा. आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ, अच्छा आउट ऑफ फियर के बाद क्या था आप लोग बताइए प्लीज. आउट ऑफ फियर के बाद क्या था, आउट ऑफ व्हाट? प्लीज राइट डाउन इन चैट बॉक्स प्लीज, क्विकली प्लीज गो अहेड. आउट ऑफ फियर के ऊपर, आउट ऑफ फियर से अच्छा क्या है? व्हाट इज द मोड ऑफ सर्विस which is better than out of fear? Please go ahead. Okay, Shivam is telling desire, Puranjan is telling desire, correct? Out of desire, correct? Okay, now another quiz for you. What is better than out of desire? Please write on all of you. Correct, correct, correct. You are going correct. Out of duty, out of duty, out of duty, correct. Now, what is better than out of duty? What is better than out of duty? The service attitude. What is better than out of duty? Yes, Shivam is telling love, 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 love. That's love. And love is actually sublime. And love with the Supreme God is something where fear cannot be together. जहाँ पे प्रेम है वहाँ पे भय नहीं है. वो वाला प्रेम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ जिसमें लोग बोलते हैं ना कि प्रेम दीवाना होता है, मस्ताना होता है और भय नहीं होता है. ऐसे ऐसे कुछ कुछ गाने हैं, तो बॉलीवुड गाने अभी सुनता नहीं लेकिन कुछ लोग ऐसे बोलते हैं. लेकिन भय अगर रियलिटी में देखा जाए, क्योंकि भगवान के साथ उनका कोई रिलेशन नहीं है, बहुत भय होता है. बहुत भय, बहुत भय. माना जाने भय के कारण इतने सारे सुसाइड करते हैं, ये करते हैं, प्राण करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि उनके साथ भगवान के साथ, जो कि परम पुरुषोत्तम भगवान है, कण कण में निवास करने वाले, कण कण के कंट्रोलर, नियंता है, प्रत्येक टाइम के, इटर्नल टाइम के कंट्रोलर हैं, उनके साथ उनका कोई संबंध ही नहीं. आउट ऑफ लव. सो दिस आउट ऑफ लव इज समथिंग which is actually the real dharma, the real dharma characteristics of every living entity, every from microbes to Brahma ji. सबका यही धर्म है. कोई जानता है, कोई नहीं जानता है. लेकिन जो जान गया वो outsmart है. He knows the life perfectly, and that is actually success of life. To know this and to have this reciprocation with the Supreme God in great love. So it's now just 4 minutes left. We will start Mangal Aarti. Amia Prabhu is here. He will take us to Mangal Aarti. So Amia, you can tell us when everything is okay. Then I will. You can open your mask and in this way we'll go ahead. So now small little time is there, 3 minutes. If you have any little question, we can discuss. Please unmute yourself and you can go ahead with the question if you have any, and then we'll proceed. Just 3 minutes time is there. Yeah.
Mm, I have a question, Prabhuji. Yes, please tell Pranjay. Can we love just bypassing the supremacy of God? Can we love? Love means whom? There should be two persons with love. There must be two persons when there is love. With whom you are telling? No, Love God. with, okay, love with God bypassing the supremacy Supremacy. of God. Yeah, that is actually the top of the top level of love. That is actually there only with one person. The supreme God having different features. One feature is called topmost feature. The most intimate feature is called Krishna. So when there is love with Krishna, then there is no sense of superiority or his consideration to the supreme God. So it becomes like so deep and so intense that Krishna becomes your like no playmate, and Krishna becomes your most friend, dear friend, and to whom you can tell, hey Krishna, झुक नीचे, तेरे तेरे पीठ में मैं चढ़ के चलूंगा, चल मुझे ले चल, यमुना के पास ले चल, तुम हार गया ना मेरे खेल में, तुमको ले जाना पड़ेगा. And Krishna will bow down to you, and God is bowing down to you, and you are upon the head on the shoulder of Krishna, and God is carrying you. And that is a top class level of love, which is so intimate, which is, and there is no sense of superior or supreme God goodness, or there is no fear at all, there is no grandeur at all. So that is actually the, in the love also there are different gradations. Okay, so that's further topics we'll discuss maybe later on. Yeah, have you got your answer, Yes. Puranjay? Yes. Yes. Okay. Okay. So anybody else you want to ask anything? Yes. It's 7 o'clock now. So this is the right time to go ahead with Mangalarti. Amir Prabhu, are you ready? If you are there, please speak or open up everything. It's 7 o'clock. Yeah, yes, Ankit, Shivam. बताइए कुछ Yes, बोलना है आपको? no, sir. Okay. Shivam, if you have any question, you can be free to ask anything. So one new message. So we're giving message. Shivam is asking, do fear arise from desire? Yeah, this desire is also of different levels. Huh? So the question is, the fear arises from desire. Fear arises not from desire, but ignorance of our own self. Fear arises from ignorance of our own self. Who are we? So from there the fear arises. Desire is something which can never be zero. Desire will always be there. But it depends which type of desire. We have better good desire or bad desire. So bad desire is actually ultimately coming from our ignorance of our own self. That is that we are separate from God and we have no connection with God, and we are simply body, we are not soul, we are simply dead matter which has born at a particular time and will die, and there is a fear of death, there is fear of everything. When you don't know the who are you, if you know that we are soul and we are eternals, and there is supreme soul, supreme God Krishna, he is eternal, and we have the relationship with him, this is called knowledge. When this knowledge is there, then all the desires are good, and then there is no fear, then there is no fear at all. I think you would be getting my point. So ultimately it is told in Bhagavatam, bhayam dvitiya nivesata syad. It is told that bhayam, the fear, is actually generated from dvitiya abhiniveshatasya. Dvitiya abhinivesh matlab ki our self understanding to be something else or secondary than what we are actually, that soul, and ultimately servant of supreme God in love. So to not have this understanding, that brings what is called fear. क्योंकि सब चीज के लिए आपको डर लगेगा. सबसे बड़ा डर तो मृत्यु का है.
सभी लोग समझते हैं कि वो केमिकल्स हैं, उनको अभी हैं, उनको मरने का डर लगता है, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि उनको पता नहीं कि वो कौन है। उनको डर लगता है कि कल क्या होगा, उनको पता नहीं, उनको भगवान के ऊपर विश्वास ही, उनको पता ही नहीं कि देयर इज सुप्रीम कंट्रोलर व्हिच इज एक्चुअली इन कंट्रोल ऑफ एवरी एटम. They are perfectly in fear. They are never confident that if you'll go on the right path with connection with God, and everything will be happy, everything will be perfect. So that is actually the root cause of fear, that not knowing things as it is, not knowing things as it is, knowing something else, or knowing not knowing the perfect scene. So that's actually the root cause of fear. That is the root cause of fear. So hopefully you have got the answer, Shivam. So Amia, bro, I'm just waiting. It's because 7:03 now. Please speak out. Everything is ready there. Please remove the mask and we can attend Mangalarti. Okay. Okay, just on set. So we are just on set of Mangalarti. Here you can see, even though because I am not there, I am somewhere else. I am in Sridham Mayapur, and this is the place, Mayapur base. So here you can see in the altar Sri Radha Madhav here and Panchatatva Narsingh Dev. And this is the devotee who is actually staying in base. Anand, his name is Anandamaya Prabhu. He is an IT professional. He did his engineering in around year 2017. He passed out. So I'll share with you on the screen so that you could follow the prayer also. So this is the prayer, Sansar Davanal prayer in Sanskrit. Sanskrit has been written as in English, very nice prayer of Sansar Davanal Lidalo, Modi Mangalati prayer. Sansar Davanal Lidalo, Pranay Karunya Ghana Ghana Sansar Davanal Lidalo.